Namaste and welcome back to another great session of Become a Genius Astrologer. So, how have you all been from yesterday? How excited are you today? And my heartiest wishes for a Navratri, happy Navratri. Today is the first day, such an auspicious day, and you're going to learn about your journey also in astrology. So, how excited are you? And as always, please आप लोग अपने cameras on करके रखिएगा. We now know each other. हम लोग एक छोटी से ग्रुप है. सो नमस्ते जपिंदर जी, नमस्ते अभिषेक जी, गुड इवनिंग. एंड श्री चरण जी, thank you very much, Sri Charan ji. You're very excited. We are also very excited. We'll be even more excited if you switch on your cameras for us. Thank you. Happy Navratri, Abhishek ji. That's okay. That's okay. And Sushil ji, good evening. Welcome. Sujaya ji, welcome. Bansha ji, welcome. Good evening, Reku ji. Welcome. Radhe Radhe, Meenal ji. Sonal ji, welcome. Definitely, Sri Charan ji, definitely. We'll be very happy. As long as you're excited to learn, we are very excited to support you. So, Neetu ji, welcome. Good evening. Meenal ji, good evening. Welcome. Jyoti ji, welcome. Anshuman ji, welcome. Good evening. Please switch on your cameras, all of you. It'll be so nice to see all of you. Radha Krishna ji is just joining us. Welcome. Good evening. Good evening, all of you. And please let us see your lovely faces. NKG, welcome. And welcome, Sakshi ji. Welcome, Chetna ji. And I know you know the drill now. And Radhakrishna ji, thank you for switching on your cameras. All of you join in. Sushil ji, Sujaya ji, switch on your cameras. It'll be so nice to see all of you. It's nice to see when we can see your smile, we can take from your energy. It's fantastic for us as well. So let me welcome you all again. Radhe Radhe, and we're going to have a fantastic learning session today. I'm going to, with on that note, I hope you have your notepads and pens ready. You know how important it is because we make a lot of notes. And then I know you've been having a fantastic time learning because हम लोगों को जो assignments मिलते हैं, we see how well you have learned. And it makes us so happy. And because you're so enthusiastic, you're such enthusiastic learners, and we love that. When we have so much of enthusiasm, we all love to learn together. So it'd be fantastic to see more assignments come our way. And so before we begin today, shall we understand what we're going to learn today? Then I would like to share my journey with you all. Sonal ji, thank you for switching on the camera. Thank you so much. And then let us understand what we're going to learn today. Then I'll tell you my journey as well. I wouldn't want to share my journey with you as well. So today we have lots in store. You're going to understand basically the entire philosophy of salsa. You're going to understand brief planetary behaviors. So आज हम लोगों को ये planets के बारे में और कुछ और ज्यादा पता चलेगी. And आपको अपने ascendant lord के बारे में, अपने moon lord के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको आज पता चलेगा. और एक big solution for a lot of problems. Sir makes it very easy. He doesn't give 10 solutions or no, one solution, and it solves a lot of problems. And above all, you will understand how to continue your learning journey. What's in store for you? What is the syllabus and what is the structure? Sir is going to take you through the entire structure. And also, if you're interested, how to become a professional astrologer, and you can start earning within 1 or 2 months. So exciting, isn't it? All this is in store for you. So without taking too much of your time, Uttam ji, Naina ji, welcome. Good evening. Let me share my journey with all of you. So जैसे आप लोगों को भी कभी कभी ये आता है ना मन में कि what is my purpose in life, मैं यहाँ क्यों हूँ, you know, these kind of questions आते थे मेरे मन में भी, and I didn't know where to find answers. तो ऐसे ना एक बार क्या हुआ in 2020, when the just before the lockdown, I had like a serious professional blow. I was, you know, I had to give up my job. I used to love to teach. I had to give it up. That's because I had, you know, I was betrayed by a few of my own friends at my workplace. And this kind of really put me into a very bad place because friends are some people that you really trust, isn't it? So, and this happened to me because of my friends. So it put me in a very bad place. So
and I was really depressed to such an extent that I had really horrible thoughts as well at those times. So it was very difficult for me. And क्या होता है जब हम लोग ना ऐसे situations face करते हैं, the first thing is we want answers. So even I wanted answers. I wanted answers to know what's happening in my life. Why is it happening to me? First thing was, why is it happening to me? I want to know answers. So as anyone would do, I also went to an astrologer. I showed him my chart. I said, what's happening in my life? He told me something. I was not satisfied. I went to another. I went to another. 10 लोगों के पास में गई और 10 लोग ना 10 स्टोरीज बोले मुझे, लेकिन एक भी सोल्यूशन नहीं दिया. So I was again very, very disappointed. So I thought, okay, let me learn. So then I started this learning journey and I learned a lot of things. I learned a lot of things. I learned tarot reading. I learned intuition building. Just name it. I have done it all. I've consulted or I have done it. I have done it all. तो ऐसे ही एक बार ना मैं फेसबुक में ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, देन आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट दैट सेड learn astrology. Till then, this thought never struck me that I could learn astrology. I always thought that it was a science that was beyond me. तो मैं सोची अच्छा चलो मैं भी चली जाती हूँ इसमें भी. I'll try this also. And I just went with no expectations, absolutely no expectations. I went through this foundation course just like all of you. And at the end of 3 days, I knew I had found my guru for life. So I accepted Dr. Sudhir Kulamji as my guru. And I have been working with him since July 2021. And now we are in October 2023 and I'm associated with him. I've had a fantastic learning journey. He's taken me through such wonderful aspects. He's made me understand how beautiful life can be, how beautiful planets can help us all. And so, what I would like to tell you all is whenever we ask questions, right, we need an answer. And understanding planets, understanding their influence, literally opens up a portal in front of us. It's like a portal. You'll have the answers right there. But for that, when you go through this and when you really understand planets and wow, how beautiful their influence is in our life, we are all going to face, there are going to be ups and downs. But at every situation, I've been able to take control of my emotions and of the situations. I have never let the situations take control of me. So that empowerment these planets have given, that empowerment, this connection with planets have given me, and that empowerment learning astrology has given. So my basic mantra that I have accepted ever since I've been associated with Sir is being aware, accept, and bring in a behavioral change. This is my mantra. I go through life with this mantra. And believe me, it has changed me a lot. I'm not the same person I was 2 years ago. I was a broken soul, and today I'm able to sit in front of all of you so confidently, saying that this really works. So this has been my journey, and I'm very, very, very indebted to my Guruji for holding my hand and taking me through this journey. On that note, I would like to welcome Acharya Dr. Sudhir Kulamji to this stage and hand over the stage. Namaste, sir. Radhe Radhe. नमस्ते एवरीवन, प्रणाम. कैसे हैं आप सब? राधे राधे. आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं. वेलकम एवरीवन. कैसे हैं आप सब? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. राधे राधे एवरीवन. राधे राधे. Excellent. Welcome everyone. Thank you so much for joining in. कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया? रेज योर हैंड. वेरी गुड. अभिषेक जी, सुशील जी, क्या बात है. राधा कृष्ण जी, वेरी नाइस. ओके. और असाइनमेंट करते करते मजा आया? वो राशि चक्र बनाते बनाते मजा आ गया? लग्न चार्ट, मून चार्ट. ओके, वेरी गुड. एंड आई होप कुछ रियलाइजेशंस भी आपको हुई होंगी, राइट, व्हाइल यू वर डूइंग दैट. ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड. एस्ट्रोलॉजी सुपर मेस्मराइजिंग है. बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब आप रियली देखना चालू कर देते हो वो कनेक्शंस को चार्ट के ऊपर ना. बहुत मजा आता है एस्ट्रोलॉजी का, और मजे से ही सीखने में बहुत ज्यादा मजा है. तो कल हमने क्या क्या किया था? कल हमने सबसे पहले तो राशि चक्र बनाया था. आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स दैट, राइट. और राशि चक्र जब हमने बनाया
फिर उसमें हमने डिग्रीज की मार्किंग करी थी, एवरीबडी रिमेम्बर्स दैट ऑल्सो। फिर हमने कंजंक्शंस देखे, राइट? कंजंक्शन का क्या रूल है? विद इन 15 डिग्रीज, राइट? कंजंक्शन का रूल इज विद इन 15 डिग्रीज, ओके। और फिर कंजंक्शन करने के बाद हमने कंबशन देखा। कंबशन में हमने क्या देखा? विद इन 6 डिग्रीज ऑफ द सन, राइट? एंड कंबशन के बाद हमने रेट्रोग्रेशन देखा। और रेट्रोग्रेशन का क्या मीनिंग था? व्हेनेवर अर्थ इज ओवरटेकिंग, स्पीड अलग अलग है हर एक प्लैनेट का, जब भी अर्थ इज ओवरटेकिंग दैट प्लैनेट और आपका जन्म हो जाता है तो उस समय वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है, राइट? और कंबशन और रेट्रोग्रेशन के बहुत सारे जो मिथ्स थे, राइट, जो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो सारी चीज हमने लॉजिकली समझने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, करेक्ट? ओके। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना बहुत जरूरी है? यस और नो? राइट? नहीं तो इजी हो जाता है ना, कोई भी आके हमको फंसा सकता है। एवरीबडी अग्रीज, यस और नो? राइट? ओके। और ऐसी ही चीजों से हमारी वर्षा जी भी, शी हैज कम अप, राइट? एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद she became aware of a lot of things, she accepted a lot of things, and then she created a behavioral change। और उनकी स्टोरी भी हमने अभी सुनी, right? So can we give her a big round of applause in the chat box, or can we, just over the video also you can give her a big round of applause, right? Because खुद के लाइफ के ऊपर काम करना इतना भी आसान नहीं है, राइट? उसके लिए हिम्मत लगती है, उसके लिए एक ये भी लगता है, क्या जोश भी लगता है कि हाँ भाई, मेरे लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी मुझे करके दिखाना है, राइट? मैं करके दिखाऊंगी, राइट? ये सब में जोश नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो जो हमारे साथ जो जो जुड़ते हैं ना, राइट, जनरली हमारे सेशंस में जो जो जुड़ते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? राइट? हो सकता है आपके लाइफ में अभी ऐसा एक कोई पॉइंट आया होगा कि आप बोल रहे हो अभी बस हो गया, अभी मैं आई विल स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। आप में से कुछ लोगों की उम्र हो सकता है 60 प्लस है, कुछ लोगों की उम्र हो सकता है 40 प्लस है, कुछ लोगों की उम्र शायद 20 प्लस है, जो भी है, लेकिन ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे आपने डिसाइड किया अभी नहीं, अभी अपने को कंट्रोल लेना है लाइफ का, राइट? दैट इज व्हाई वी आर हियर टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। सो वेरी वेल डन वर्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू ऑल। ओके, तो हमने ये सारी चीजें कल सीखी, और आज कल हमने ये भी सीखा मून चार्ट कैसे बनाना है, सन चार्ट कैसे बनाना है, राइट, लग्न चार्ट कैसे बनाना है, राइट, वो भी हमने कल सीख लिया था, राइट? ओके। फिर हमने और क्या सीखा था कल? प्लैनेट्स और उनके कौन से रिश्ते हैं, वो भी हमने सीखा था, राइट? जैसे कि सन फॉर फादर, मून फॉर मदर, मर्क्यूरी फॉर मामा चाचा, right? Then Venus for your spouse, girlfriend, boyfriend. Then we saw Mars for your siblings, Jupiter for your guru, children, and Saturn for your, employees, sevaks, right, maids, lawyers, and so on and so forth, right? We also saw Rahu and Ketu yesterday. And we also did that small forefathers meditation also yesterday. How many of you enjoyed that meditation? Okay, great, great. Okay, so this is what we have done so far. And today we are going to learn a lot of things, and we are going to firstly get started with understanding what is the, which planet is strong in your life and which planet is kind of weak in your life, right? We are going to try to understand that in your life. And we are going to talk about the 7 planets, जो 7 planets है ना, राइट, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके कुछ रेमेडीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? सो दैट हमारे लाइफ में हमको मालूम पड़े कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है तो कौन से प्लैनेट्स की वजह से हो रही है और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट? इज एवरीबडी रेडी फॉर दिस? राइट, सो यू नीड नोटपैड, पेन्स विथ यू, और बहुत सारे ना खुद को हम पॉइंट्स देने वाले हैं, बहुत बहुत सारे चीजों के ऊपर। बहुत मजा आता है ये वाले सेक्शन में, सो लेट्स गो अहेड।
And I also at the same time want to thank you for being here today. त्योहार शुरू हुआ है, हो सकता है आज के सेशन के बाद शायद वो गरबा खेलने का मन भी करता होगा, राइट, या फिर कहीं पे आवाज भी आती होगी, सोसाइटी में कुछ चालू हुआ रहेगा, राइट, बट इवन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट आप सब लोग यहाँ पे हो, राइट, दैट मीन्स समथिंग, right? So I really salute to all of your dedication and your the desire to keep learning. So thank you so much and give yourselves a big round of applause for that thing, right? Excellent, very good, right? Because आपके अंदर की वो ये दिख जाती है, चाह दिख जाती है कि भाई आपको ये नहीं करना है, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़नी है, right? You have to complete it. Very good. Okay, excellent. So let us get started and let us start learning about the planets. और मैंने कल भी कहा था सबसे important एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज है then that is planets. Yes or no? Right? क्यों? क्योंकि planet से ही हमें अवेयरनेस मिलेगी, planet से ही हम एक्सेप्ट कर पाएंगे चीजों को, एंड planet से ही we will be able to understand कि कौन सा बिहेवियर कभी चेंज करना है. Alright? Let us get started with the sun. Let us see आपके लाइफ में सन कितना स्ट्रॉन्ग है. सन मतलब क्या? सन मतलब लीडरशिप स्किल्स. सन सबका लीडर है ना, सेंटर में होता है और सबको अपने अराउंड घुमाता है. यस और नो? दैट इज व्हाट द सन डज, राइट? सन सेंटर में होता है और सब प्लैनेट्स को अपने अराउंड घुमाते बैठते हैं. इसके लिए चाहिए लीडरशिप स्किल्स, राइट? सो आपको अभी क्या करना है मालूम है? आपको अभी रेटिंग देनी है खुद को कि आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में लीडरशिप स्किल्स कितने होंगे. ओके, व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ 10? इज इट 10 आउट ऑफ 10 दैट यू थिंक यू आर अ वेरी गुड लीडर? कि आपको क्या लगता है कि नहीं 10 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं या 6 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, राइट? मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, राइट? मैं अगर लीडरशिप को मुझे खुद को अगर मार्किंग देना है मुझे, तो आई विल गिव अराउंड 3 और 4 ओनली, राइट? क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना काफी सारे एक्सपीरियंसेस है. एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ. स्कूल डेज में देयर वाज एन इलेक्शन. स्कूल के इलेक्शंस होते हैं ना, वो पूरे वो डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट? तो मेरे जो ना 9th स्टैंडर्ड में देयर वर लाइक 500 स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड में 500 स्टूडेंट्स, और मैं इलेक्शन में था. हर एक क्लास में जाके आई वाज गिविंग लेक्चर्स, आई वाज गिविंग दिस स्पीच, आई वाज गिविंग, राइट? उनको बोल रहा था मुझे वोट करना, इलेक्शन आ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. और टोटल 500 लोगों में से कितने वोट्स आए रहेंगे? डू यू नो? कैन यू गेस? राइट, गिव मी अ गेस इन द चैट बॉक्स. व्हाट डू यू थिंक? मुझे कितने वोट्स मिले रहेंगे? 500 बच्चे हैं पूरे. अभिषेक जी सिंह 150. ओ माय गॉड, राइट? मोनिका जी सिंह 100. वो 500 बच्चों में से आई गॉट ओनली 6 वोट्स. ओके, आई गॉट ओनली 6 वोट्स. ठीक है, राइट? तो उस दिन, अगर उस दिन के बारे में मैं आज सोचता हूं, तो आई कैन रिलेट माई पैटर्न्स टू माई लाइफ. कि हाँ, मुझे लगता है कि मतलब मेरी तो इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गैदरिंग पीपल सपोर्ट, राइट, वहां पे कहीं ना कहीं मैं कम पड़ जाता हूँ. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, सो दैट इज व्हाई आई विल गिव ओनली 3 और 4. जब एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आई अंडरस्टूड व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू लर्न, व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू डू. वो तो बाद में हुआ, राइट? कभी कभी असर्टिव भी होना पड़ता है, कभी कभी इगोइस्टिक भी होना पड़ता है, वो तो बाद में सीखा. तो ऑन एंड ऑल ओवरऑल आपको क्या लगता है आपकी लीडरशिप स्किल्स को आप कितने पॉइंट्स दोगे? गो अहेड, गिव इट इन द चैट बॉक्स, और आपके नोटबुक में भी लिखना. नोटबुक में भी लिखना बहुत जरूरी है. सो अभिषेक जी इज गिविंग पॉइंट्स, वेरी गुड, राइट? लीडरशिप स्किल्स, हाउ गुड अ लीडर यू आर, पॉइंट्स दे देना खुद को एंड राइट इट डाउन इन द नोटबुक एज वेल, खुद को. ठीक है, वेरी गुड. मोनिका जी सिंह 8 पॉइंट्स, वेरी नाइस, excellent.
What about others? Uttam ji is saying 9 points. 7 points, 3 points. Okay, very good. Thank you for being honest. Very good. ये एक्सरसाइज में ना ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट? एक्सीलेंट. 10 points, 7 points. Very good. Right. Excellent. Very good. Second behavioral pattern of the sun is being very good in politics. अभी मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हेट पॉलिटिक्स? क्या ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है? घर वाले हो, घर के पॉलिटिक्स हो, घर के अंदर के, या बाहर के पॉलिटिक्स हो, या जॉब के अंदर के पॉलिटिक्स हो, कितने लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है पॉलिटिक्स? ओके, देखो, इफ यू डोंट लाइक पॉलिटिक्स, नो, दैट इज आवर प्रॉब्लम, दैट इज आवर वीकनेस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो? राइट? क्योंकि अगर हमें पॉलिटिक्स खेलना नहीं आता है, या फिर पॉलिटिक्स समझना भी नहीं आता है, तो क्या होगा? सामने वाला खेल लेगा अपने साथ में पॉलिटिक्स. इट इज एज सिंपल एज दैट, यस और नो? राइट? सो इफ वी डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो सामने वाला खेलेगा, सामने वाला विल यूज अस, यस और नो? राइट? तो व्हाट इज द रेमेडी इन दिस पर्टिकुलर थिंग? कि घर पे बैठ के खाली सूर्य देव के चैंटिंग करने से पॉलिटिक्स आ जाएगा क्या? नहीं, हमें क्या करना है? हमें पॉलिटिक्स में अंदर घुसना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा. सबसे पहले तो अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे घर में पॉलिटिक्स हो रहे हैं, हाँ यार, मेरे लाइफ में भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं. राइट? सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जितना भी हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे हमें भी पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट इज द ओनली सॉल्यूशन? राइट? तो चलो, वो तो खैर हम सीख लेंगे जैसे जैसे आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के टाइम में लाइफ में आपको पॉलिटिक्स कितना पसंद है? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स. राइट? अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप बिल्कुल खेलना नहीं चाहते, खेलते भी नहीं हो, राइट, या फिर मतलब वो अवॉइड ही करते हो, गिव योरसेल्फ 0 points देयर. ठीक है? अगर 1.5 साल पहले का मैं खुद के बारे में अगर सोचूं ना, तो आई विल ऑल्सो गिव 3 or 4 points ओनली. उतने भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली समझ में भी नहीं आता था, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं. राइट? ओके, सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, अभी ये देखो, ये हर एक वर्ड जो है ना यहाँ पे, ये बिहेवियरल पैटर्न भी है उस प्लैनेट का, और यही वर्ड आपके लिए रेमेडी भी है. अगर आप कोई भी शब्द को कम पॉइंट्स दे रहे हो या 0 points दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या? हमें उस चीज पे काम करना पड़ेगा. राइट? यही है रेमेडीज भी. राइट? सो एवरी प्लैनेट के वी आर गोइंग टू लर्न 4 रेमेडीज. सन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक, बीइंग एनर्जेटिक. मतलब देखो ना, सन को देखो ना, पूरा टाइम जलते रहते हैं, 24 hours a day, 7 days a week, right? 4 weeks in a month, 12 months in a year, right? बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलते सूर्य देव की चलो आज मैं सो जाता हूँ, कल वापस जाग जाऊंगा, कल ऊर्जा दूंगा आप सब लोगों को. ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? सुपर एनर्जेटिक, फुल ऑल द टाइम. मतलब सुबह भी उतनी एनर्जी, शाम को भी उतनी एनर्जी. हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? लाइक द सन, consistently giving energy. Give yourself points on your energy levels also. Okay, 7 points, 4 points, 2 points. Okay, 6. Excellent. क्या बात है राजेश जी, जपिंदर जी, एक्सेलेंट, वेरी गुड. गिव योरसेल्फ पॉइंट्स. ओके, you feel more energetic after sunset, but it's okay, still you feel energetic, no? Okay, no problem. Okay, okay, give yourself points on energy wala part. And then the fourth point is very important point of the sun again.
and that point is having an healthy ego. Let me ask you a simple question. आप में से कितने लोग ना नहीं बोल पाते? ओके रीटा जी, अभिषेक जी, यू कैन नॉट से नो. हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? मतलब कोई भी आके आपको कुछ भी बोल जाता है और आप बोल देते हो हाँ चलो कर देंगे, मैं कर दूंगी ये वाला पार्ट, राइट, ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, राइट. आप मना ही नहीं कर पाते किसी को. अभी मना क्यों नहीं कर पाते मालूम है? क्योंकि आप खुद के बारे में नहीं ना सोच रहे हो, आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो. यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं? राइट. ओके, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन उनके बारे में सोचते सोचते थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोच लो. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये भी चीज जरूरी है कि नहीं? है ना? राइट. तो ये वाले पॉइंट पे मार्क्स दो खुद को. क्योंकि क्या होता है मालूम है, हम दूसरों के बारे में सोचते सोचते, दूसरों के लिए करते करते, उनके लिए हमारा समय दे देते हैं, राइट, उनके लिए हमारा पैसा दे देते हैं, राइट, उनके लिए हमारा एनर्जी दे देते हैं, राइट, और फिर खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता है. व्हाट टू डू? आप में से कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे हाँ यहाँ पे I will draw a line. I cannot say yes to this particular part. I will say no to this particular part because I have so many things to do. Right? So give yourself points on this particular point कि do you have an healthy ego? इसलिए मैंने उसको क्या कहा है? Healthy ego. कुछ लोग होता है सुपर ईगोइस्टिक हो जाते हैं, राइट, मतलब हाँ कभी नहीं बोलते वो लोग. राइट, नहीं तेरे लिए ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती, मुझे मुझे खुद को देखना है. दैट इज थोड़ा सा ज्यादा ईगो हो जाता है वो, राइट. उनके लिए जब हम शनि महाराज के बारे में बात करेंगे तभी उनके लिए हम बात करेंगे, राइट. लेकिन अभी आप अपने लिए देख लो हाउ स्ट्रॉन्ग अ हेल्दी ईगो यू हैव. ओके, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स. और अभी क्या करना है? पूरे सन के चारों पॉइंट्स को टोटल कर लो. टोटल सन को कितना मिला आउट ऑफ 40? पुट दैट इन द चैट बॉक्स. हाउ मच? 20. Rita ji is saying 16. Sushil ji is saying 26. Japinder ji is saying 17. Okay. Radha Krishna ji 23. Very good. Very good. 26, 29, 29. Okay, very good. अभी हमारा सालसा मेथड में थंब रूल क्या है मालूम है? अगर 30 एंड अबव है तो ओके है, अच्छा है, दैट प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ. ठीक है. अगर 30 एंड बिलो है, उसके थोड़ा सा बिलो है, तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, राइट. और क्या काम करना पड़ेगा? इन्हीं चारों चीजों में से देख लो कौन से पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हो. कोई भी एक पॉइंट चुन लो और उसके ऊपर काम करना चालू कर दो, राइट. अगर आपने डिसाइड कर लिया नहीं अभी से ना थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना चालू करूंगी या मैं चालू करूंगा, राइट, तो वो पॉइंट पे काम करना चालू करो, राइट. ऑटोमेटिकली लाइफ में सन का जो प्रेजेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगा. और हमारे सालसा मेथड के हिसाब से एक थंब रूल है, क्या है मालूम है? हमें हमारे लाइफ में सारे प्लैनेट स्ट्रांग चाहिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. राधे राधे नेत्रा जी. ओके, हमें सारे प्लैनेट स्ट्रांग चाहिए. और एक चीज एकदम मजेदार चीज बताऊं, ये सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हेल्दी ईगो पे काम कर लोगे ऑटोमेटिकली आप में एनर्जी आ जाएगी, देख लेना, राइट. या फिर आप पॉलिटिक्स पे काम करोगे ऑटोमेटिकली लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगी, राइट. तो प्लैनेट्स के ऊपर काम करना ना एक्चुअली बहुत सिंपल है और बहुत मजा भी आता है. कोई भी एक रेलेवेंट पॉइंट लाइफ में चुन लो और उसके ऊपर काम करना चालू कर दो, राइट.
अगर ये चीज पसंद आई तो बोलो राधे राधे इन द चैट बॉक्स। ओके, हमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। हमें हर एक प्लैनेट को अपने लाइफ में ना एकदम स्ट्रांग बनाना है। हर एक एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना सीखना है अपने को, ताकि हम देख सके कौन से सिचुएशन में कौन से प्लैनेट की एनर्जी की जरूरत है। राइट, excellent. Let us go to the next planet, Moon. Okay. So Moon के बारे में सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, Moon stands for very good emotional management. अभी इमोशन मैनेजमेंट मतलब क्या? आप में से कितने लोग बहुत सारा गुस्सा ऐसे दबा के रखते हो? ओके, राइट, इसको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू ऐसे फ्रस्ट्रेशन अंदर दबाए रखते हो? इसको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं। राइट, साक्षी जी आपने भी हाथ ऊपर किया था। ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बहुत सारा, मतलब एक ना कोई टाइप का गिल्ट है अंदर लाइफ में, कुछ तो आपने गलत किया था, एक गिल्ट बैठी हुई है मन के अंदर। राइट, और वो गिल्ट आज भी खाए जा रही है आपको। इसको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं। राइट, इमोशनल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सारे जो कांड हुए ना पास्ट में, राइट, जो भी गिल्ट होगी, जो भी गुस्सा होगा, राइट, जो भी फ्रस्ट्रेशन होगी, उसको एक्सप्रेस कर पाना, उसके बारे में बातें कर पाना, राइट, उसके बारे में एकदम अवेयर होके एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज गुड इमोशंस मैनेजमेंट। राइट, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एक दिन आएगा पूरे हम फट जाते हैं यस और नो, राइट, और फिर किचन में तोड़ फोड़ कर देते हैं, या किसी का सर फोड़ देते हैं, या किसी प्लेट को तोड़ देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, नेत्रा जी वो छोड़ो, नीच राशि उच्च राशि वो सब छोड़ो, अभी फोकस ऑन आवर दिस मेथड। ओके, वो भी हम बात करेंगे लेटर ऑन, बात करेंगे हम, है ना? ओके, सो गो अहेड, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। आपको क्या लगता है, आप अपने इमोशंस कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, कर सकते हो? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, 10 देना है 10 दे दो, 5 देना है 5 दे दो, 3 6। ओके, उत्तम जी वेरी गुड, 9। जपिंदर जी सेइंग 5। ओके, Rajendra ji 10. Okay, and so on and so forth. Next point about the moon is understanding psychology of other people and showing empathy. Empathy मतलब क्या मालूम है? जो सामने वाला फील कर रहा है ना, वो भी आप फील कर रहे हो। राइट, सामने वाला गुस्सा है तो उससे उसके गुस्से को आप समझ सकते हो, वो भी फील कर लेते हो। सामने वाला अगर खुश है तो आपको भी खुशी महसूस होती है। बाय द वे, हर एक कोई ऐसा नहीं होता है, हाँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप खुश हो लेकिन आप खुश हो इसलिए वो जेलस हो जाते हैं, अरे यार तू खुश कैसे, चेतना यार तू इतनी खुश कैसी। हाँ, अंडरस्टूड? तो क्या आप फील कर पाते हो, सामने वाला क्या फील कर पा रहे हो उसको आप फील कर पाते हो? अगर वो फीलिंग आती है आप में तो गिव योरसेल्फ वेरी गुड पॉइंट्स। So your moon is automatically very strong. You are an empath, right? You are very empathetic. आप समझ लेते हो सामने वाले की फीलिंग्स को, समझ लेते हो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये होनी बहुत जरूरी है। ओके, एंड बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लग रहा है शायद ये पूरे ग्रुप में ना ये वाले पॉइंट के ऊपर आप में से काफी हाई होंगे लोग। ठीक है, ओके। फिर आप में से थर्ड पॉइंट, लेट अस सी थर्ड पॉइंट अबाउट द मून। आप में से कितने केयरिंग हो, कितने मदरली हो फॉर अदर्स? मतलब माँ कैसे होती है, बेटा खाना खाया कि नहीं, बेटा पानी पिया कि नहीं, कैसे हो, ठीक तो हो ना, राइट, धूप तो नहीं लग रही बहुत सारी, राइट, छाता लेकर गए हो कि नहीं, बारिश में भीग जाओगे। ये जो केयर है, ये जो बेसिक लेवल पे जो केयर है ना,
इसको बोलते हैं बीइंग मदरली। अभी आप में से कुछ बिजनेस करते होंगे एंड यू माइट बी मदरली इन योर बिजनेस, यू माइट बी मदरली एट होम, कहीं पे भी हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं, राइट? लेकिन ओवरऑल नेचर में आपका वो केयरिंग और मदरली नेचर है। अगर है तो गिव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, अगर नहीं है तो दैट इज ऑल्सो ओके, गिव योरसेल्फ लेसर पॉइंट्स देयर, वॉट एवर इट इज, ऑनेस्टली लिखना है ना, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, and the fourth point about the moon is being a king maker। अभी किंग मेकर मतलब क्या? ये रानी है, मून इज व्हाट, रानी। और इतिहास गवाह है कितने सारे राजाओं को रानी ने डुबा दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो? इफ यू एग्री ऐसे मुंडी हिला देना, नॉड योर हेड, राइट? इतिहास गवाह है कितने सारे राजाओं को रानी ने ही बनाया है कि नहीं? सपोर्ट भी किया है। तो रानी का सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? राजाओं को सपोर्ट करना, राजाओं को बनाना, राजाओं को आइडेंटिफाई करना, और ऐसे बोलना, देख भाई मुझे राज नहीं चाहिए लेकिन तेरे को मैं राजा बना सकती हूँ, राइट? ये वाली क्वालिटी है ना, दैट इज द मून। मतलब किसी का राइट हैंड बन जाना, होता है ना, अपने ऑफिस में भी होता है, राइट? किसी का राइट हैंड बन जाना, बॉस का राइट हैंड बन गए हो, राइट? और ये नेचुरली क्वालिटी आ जाती है आप में। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी किंग मेकर्स, राइट? टाइप इन द पॉइंट्स, इसको आप पॉइंट्स दे देना, और मून का टोटल कर लेना, देखो कितना आता है मून को। आउट ऑफ 40 हाउ मेनी पॉइंट्स इज द मून गेटिंग? 28, 37, 31, 27। ओके, चेक इट आउट। 38, क्या बात है सोनल जी, वेरी गुड, मून इज वेरी स्ट्रांग। ओके, और बाय द वे ये स्ट्रांग और वीक प्लैनेट्स ना चेहरे पे भी दिख जाते हैं। ओके, इफ यू ऑब्जर्व ईच अदर्स वीडियोस आल्सो ना, यू विल अंडरस्टैंड, राइट? ओके, एंड अगेन द सेम रूल अप्लाइज, एनीथिंग बिलो 30 वी हैव टू वर्क ऑन इट। टेंशन नहीं लेना है, हमें उसके ऊपर काम करना है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट चुन लो और काम करना चालू करो, राइट? ये चारों पॉइंट्स ट्रेड्स भी है, बिहेवियर्स भी है, और ये चारों पॉइंट्स रेमेडीज भी है। अंडरस्टूड? बिहेवियरल रेमेडीज है ये सारे। ओके, ठीक है। लेट अस गो टू मर्क्यूरी। ओके, लेट अस गो टू मर्क्यूरी। अभी यहाँ पे भी बहुत मजा आता है इसके बारे में बात करते करते। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सबसे पहला पॉइंट है मर्क्यूरी में, बीइंग डिप्लोमैटिक। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी डिप्लोमैटिक? कि हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है मुंह पे बोल देते हो? ओके, चेतना जी। ओके, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप? इफ यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो, यू आर नॉट एट ऑल डिप्लोमैटिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? आप में से कुछ लोगों को डिप्लोमेसी बहुत पसंद आती होगी, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती होगी, ठीक है? आप में से कितने लोगों की आदत है, जो भी है सामने वाले को मुंह पे बोल देने की? तो गिव लेस पॉइंट्स फॉर डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी ये होती है कि कोई भी झगड़ा में अपने को घुसना ही नहीं है, राइट? सामने बिठा के या सामने बैठ के बातें करते 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 सॉल्यूशंस निकालना है, दैट इज डिप्लोमेसी। अंडरस्टूड, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर डिप्लोमेटिक? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स आउट ऑफ 10। वेरी गुड नेत्रा जी, राइट? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, नोटबुक में भी लिख लेना, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो तो डाल देना, ठीक है? वाह, ओके। ज्योति जी क्या हो गया? नॉट एट ऑल डिप्लोमेटिक, नो प्रॉब्लम।
ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना अपने को ना, वी वांट ऑल द प्लैनेट्स टू बी वेरी स्ट्रांग विद अस, राइट। आज हमें मालूम पड़ेगा कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, राइट। धीरे 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 हमें हर एक प्लैनेट के ऊपर काम करना है। ओके, second point about Mercury is trying to understand and decode everything in a logical way, right? मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप में से कुछ लोग जो है ना बिना सोचे समझे कुछ एक्शन लेते होंगे। यस और नो, राइट। इसको बिल्कुल भी एनालिटिकल स्किल नहीं बोलते हैं, राइट। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम सामने होता है, आप पहले क्या करोगे, पेन और पेपर लेके बैठ जाओगे, right? You will try to analyze it, you will try to write it down, you will try to अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम किधर है, उसका एनालिसिस करोगे, स्वॉट एनालिसिस करके होता है वो कर लोगे, जो भी है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दैट? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभिषेक जी क्या बात है, ज्योति जी क्या बात है, वेरी गुड। नेत्रा जी वेरी गुड। नेत्रा जी ओवरऑल आपका मर्क्यूरी बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को, लेट्स सी। ओके, देखो ये तरीका अच्छा है ना सीखने का, राइट। हमें कुछ नहीं देखना है, उच्च राशि नीच राशि ये सब छोड़ो, ये सब बाद में सीखेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे हम, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली सीखना भी तो जरूरी है कि नहीं? सिर्फ थियोरेटिकल सीख के क्या करेंगे, लाइफ में तो अप्लाई भी तो करना है अपने को, राइट। ओके, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है मर्क्यूरी का, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। भाई डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा तो कम्युनिकेट भी तो करना ही पड़ेगा लोगों के साथ में, राइट। और आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो किसी से भी बात करने के लिए, भले आपका दुश्मन क्यों ना सामने आ जाए, यू आर रेडी, चला बैठ बातें करते हैं, राइट। या फिर आपके सामने 100 लोग भी आ गए, यू आर लाइक ओके, वेरी गुड, वी कैन टॉक, कोई टेंशन नहीं, बातें कर सकते हैं, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स? टाइप इन, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स, ओके, ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। और मर्क्यूरी का चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। मतलब आप में से कितने लोगों ने 20 सालों का प्लानिंग करके रखा हुआ है? राइट। मतलब एक बोर्ड बनाया हुआ है कि मुझे 10 सालों बाद ये चाहिए, फिर ये चाहिए, पहले घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, राइट, फिर जेट प्लेन चाहिए, राइट, या फिर उसके बाद बोट चाहिए, क्रूज लाइनर चाहिए, जो भी है, राइट। और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं, कोई भी चीज का आपका लंबा प्लानिंग, राइट। या फिर कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप में से कितने लोग बैठ के पहले प्लानिंग करते हैं, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये डिसीजन लेंगे तो ऐसा हो सकता है, करेक्ट। सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। सो कितना हुआ टोटल मर्क्यूरी का? नेत्रा जी देखो 39, ओके। अभिषेक जी 33, वेरी गुड। 25, 32, 32, यहाँ पे 27 लोग हैं आज, राइट। 24 लोग हैं, तो लेट अस सी हाउ मेनी रिस्पॉन्सेस वी आर। श्री चरण जी 22, एक्सेलेंट, ओके। Mercury is also high, yes. So again the same rule applies, anything above 30 is very good, anything below 30 we have to work on it, okay. कैसे वर्क करना है, क्या रेमेडी करोगे? सिंपल है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस पकड़ लो, राइट। धीरे धीरे हो जाएगा मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टूड नो, राइट। या डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करो, जिससे बात करने में डर लगता है ना, सबसे पहले उसको कॉल करो और उसको बुलाओ कि भैया बैठना है, बातें करते हैं, लेट्स सी, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट कम्स माय फेवरेट planet, okay, and that planet is
वीनस। ओके, अभी वीनस के बारे में क्या बताऊं। वीनस तो है नखरे करने वाला प्लैनेट, राइट, अदाओं वाला प्लैनेट, लटकों झटकों वाला प्लैनेट, राइट। एंटरटेनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा होती है वीनस में, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे एंटरटेनर बन जाते हो, अगर एक ग्रुप में हो तो इमीडिएटली यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर ग्रुप में हो तो यू स्टार्ट सब लोग आपके पास ही आ जाते हैं बात करने के लिए, राइट। और अरे सुना ना कोई जोक सुना ना, राइट, अरे सुना ना वो किस्सा सुना ना क्या हुआ था, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दैट? क्या बात है, वेरी गुड उत्तम जी, क्या बात है। जपिंदर जी क्या हो गया? नो प्रॉब्लम, वी विल वर्क ऑन इट, ओके, टेंशन नहीं लेना है कोई भी चीज का, राइट। राजेंद्र जी क्या बात है, राजेंद्र जी क्या बात है। राजेश खन्ना, आपके नाम में ही एंटरटेनमेंट है ना। राजेश खन्ना जी, यस सर, नो, राइट। ओके, वेरी गुड, गुड रियलाइजेशन, गुड अवेयरनेस, ओके, वेरी नाइस। Second point of Venus is continuously working on your beauty, right? मतलब क्या, आप में से कितने लोग हमेशा कहीं पे भी जाना होगा, मतलब पड़ोसी के घर में भी जाना होगा ना, तो भी आप अच्छे से सोचोगे, अरे कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, राइट, थोड़ा फाउंडेशन लगा लो क्या, थोड़ी लिपस्टिक चढ़ा लो क्या, राइट। एंड यू विल, सिर्फ सोचोगे नहीं, आप करोगे भी, राइट। And this is not only applicable to females, this is applicable to males also. Am I groomed correctly? दाढ़ी ज्यादा तो नहीं हो गई, सही तो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, राइट। टोपी पहन के जाओ कि नहीं जाओ, ये कपड़े सही है कि वो कपड़े पहनने चाहिए, आप सारी चीज के बारे में अच्छे से सोचोगे। एंड यू विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योर ब्यूटी ऑल्सो, मतलब पेडिक्योर मैनिक्योर तो महीने में 2 बार तो मैंडेटरी है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? चेक इट आउट, वेरी गुड, राइट। हाउ मेनी यू डू नॉट एट ऑल डू दैट, ध्यान ही नहीं देते हो ये सारी चीजों पे, तो कम पॉइंट्स दे देना, राइट। अपनी ब्यूटी, राइट, यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट, यू आर लाइक कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट। हैंडसमनेस, आपको हमेशा हैंडसम दिखना है, राइट, अच्छे से परफ्यूम वर्फ्यूम एकदम लगा कर, राइट, सब जगह पे। ओके, नो वरीज जपिंदर जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ओके। भाई दे मुझे काफी सारा नॉलेज है ये मामलों में, राइट। फाउंडेशन क्या होता है, आईलाइनर्स कैसे लगाते हैं, राइट, लिपस्टिक्स कैसे लगाते हैं, कौन से शेड्स होते हैं, मैट क्या होता है, ग्लॉसी क्या होता है, राइट। वो नेचुरली है, राइट, एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बायोलॉजिकली मेल हो तो ये सारी चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते। इट इज ऑल प्लैनेट्स। Is everybody understanding? चलो इसके ऊपर पॉइंट्स दे देना ऑन योर ब्यूटी पार्ट, ओके। Then the third point about Venus is you are automatically an artist. आप में से कितने लोग आर्टिस्ट हो? आर्टिस्ट मतलब कोई भी चीज, मतलब फॉर एग्जांपल म्यूजिक में आर्टिस्ट हो सकते हो, या पेंटिंग कर सकते हो, या कोई चीजें आप बना सकते हो, क्रिएटिविटी में एकदम माहिर हो सकते हो, राइट, या फिर कोई भी टाइप का आर्ट, ओके। सिंगिंग, करेक्ट, वेरी गुड। अगर आर्टिस्ट होंगे ना तो ऑटोमेटिकली कलर्स पे ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिकली साउंड्स पे ध्यान जाएगा, है ना। सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स, राइट। सो बाय द वे, मैं आई हैव डन माय अरंगेट्रम इन मृदंगम, देन आई एम अ गिटारिस्ट आल्सो, आई कैन राइट सॉन्ग्स, आई कैन कंपोज सॉन्ग्स। आज भी कल ही ख्याल आया था ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक एक गाना लिख दें और उसको कंपोज करके, राइट, वी कैन क्रिएट एन एल्बम, एस्ट्रोलॉजिकल एल्बम, राइट। तो वो गाने सुनते सुनते भी हम प्लैनेट्स के बारे में सीख सकते हैं ना। ऐसे ख्याल उन्हीं को आएंगे जिनका वीनस बड़ा स्ट्रांग है, अंडरस्टूड।
ओके, एंड देन चौथा पार्ट वीनस का क्या है मालूम है? लग्जरी। ओके, लग्जरी मतलब क्या? कहीं बाहर जाना है ना, आप देखोगे नहीं अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन रेडिसन में रहना है तो रेडिसन में ही रहना है। राइट? ताज में रहना है तो ताज में ही रहना है, भले वो अकाउंट पूरा खाली क्यों ना हो, खुद का अकाउंट हो या पति देव का अकाउंट हो या बीवी का अकाउंट हो, किसका भी अकाउंट होने दो। राइट? कुछ नहीं तो सास ससुर से मांग लेंगे, है ना, लेकिन जाना है, रहना तो अच्छा है। राइट? घर खरीदना है तो अच्छा वाला घर ही चाहिए, वो बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए ही चाहिए। राइट? एम्यूनिटीज वाला घर चाहिए। राइट? भले उसके लिए 2 करोड़ क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एम्यूनिटीज के साथ ही रहेंगे। क्यों ना अगले 20 साल हम पूरे ईएमआई भरने के पीछे ही चक्कर में लग जाए, फिर भी चलेगा, लेकिन अच्छे एम्यूनिटीज वाला घर ही चाहिए। राइट? दैट इज वीनस। ओके, सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पॉइंट आल्सो कि लग्जरी के पीछे कितने पागल होते हो। मतलब क्लोथ्स भी पहनोगे ना एकदम ब्रांडेड वाले, है ना, गुच्ची ही चाहिए। राइट? ये जूडियो वीडियो कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल ब्रांड्स हो गए, है कि नहीं? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दैट। ओके, और टोटल बताओ वीनस का टोटल कितना हुआ? आपके लाइफ में वीनस का कितना प्रेजेंस है, देखो तो। साक्षी जी, आजकल कौन सा ब्रांड है ऑन द टॉप, मतलब लग्जरी, इसमें इन द लग्जरी सेगमेंट? लग्जरी सेगमेंट, सर मेरा तो फोकस एलवी पे है। ओके, ओके, सर ड्रीम्स रखेंगे तो पहुंचेंगे ना वहां तक। ओके, ऑलराइट। सो 40 पॉइंट्स है नेत्रा जी, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राजेश खन्ना जी 31, उत्तम ऑल्सो 40 पॉइंट्स, क्या बात है। किधर है उत्तम जी, किधर हो, वेर आर यू? लो कर लो बात। वीनस 40 पॉइंट्स पे, लेकिन वीडियो ऑफ है। वीनस अगर तगड़ा रहेगा ना तो डेफिनेटली आपका वीडियो ऑन रहेगा, क्योंकि आप खुद को दिखाना चाहोगे ना दुनिया को, है कि नहीं? ओके, ओके उत्तम जी, नो प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग, ही इज ट्रैवलिंग। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मार्स। बिफोर वी गो देयर, कितने लोगों को मजा आ रहा है? कितने लोग खुद के बारे में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं? राइट? आई बिन राधे राधे इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लग रहा है अरे यार ये तो बहुत बड़ा अच्छा तरीका है एस्ट्रोलॉजी सीखने का? यस और नो? एकदम सिंपल है, एकदम प्रैक्टिकल है, लाइफ से रिलेट कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देन लेट अस गो टू, आप में से कुछ लोगों का बड़ा फेवरेट प्लेनेट होगा ये, राइट? हमारे 3D में तो एक का तो बड़ा फेवरेट प्लेनेट है, राइट? एंड दैट इज मार्स। ठीक है, अभी मार्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? मार्स स्टैंड्स फॉर, पहला पॉइंट है अग्रेशन एंड क्विक एक्शंस। राइट? पहले करो और उसके बाद में सोचो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कोई भी चीज पहले कर देते हो राइट? बाद में सोचो अरे मैंने क्या कर दिया, राइट? फिर आप देखते हो अच्छा हाँ ये सही हुआ, ये अच्छा था, ये मैंने सही किया, राइट? और कभी कभी बाद में सोचते हो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, राइट? थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया मेरा, राइट? so give yourself points, right? How many of you are very aggressive and how many of you take actions very quickly, right? और बाय द वे ये कोई बुरी बात है ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे हमें क्विक एक्शंस की जरूरत पड़ती है, राइट? ऐसा भी तो होता है ना लाइफ में, अरे यार उस समय मैंने ये चीज करना चाहिए था लेकिन मैं सोचते बैठ गया, मैं तो सोचते बैठ गई, ऐसा भी तो होता है। तो आप में से कितने लोग क्विक एक्शंस कर लेते हो? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके,
वेरी गुड। योगिंदर जी 10, नेत्रा जी 5, श्रीचर। और जनरली ऐसा होता है जिनका मर्क्यूरी और वीनस दोनों स्ट्रांग होता है ना, उनका मार्स थोड़ा सा लोअर साइड पे आ जाता है। क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम नखरे करने में ही चला जाता है ना। यस और नो, है कि नहीं? राइट, ओके। जिनका ये मार्स स्ट्रांग होगा ना, आप ज्यादा ना नेगोशिएशन में भी आप ना घाई कर देते हो। यस और नो, कोई चीज आप खरीदने गए हो, राइट, नेगोशिएट करने का बड़ा अच्छा चांस है, लेकिन आप क्या कर देते हो, राइट, अच्छा अच्छा नहीं नहीं चल चल ले लेते, खत्म कर इसको, राइट, दिस इज अ गुड प्राइस, कर लो, राइट। दैट इज aggression, that is quick actions, okay? और कभी कभी ना ये डर लगा रहता है, अरे यार ये अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, वो अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, है कि नहीं? इसलिए हम क्विक एक्शंस लेते हैं। सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सेकंड पॉइंट अबाउट मार्स इज, कोई ना कोई टाइप का स्पोर्ट्स या रिगरस फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, ठीक है? या हो सकता है करते थे, आज भी करने की बहुत इच्छा है लेकिन शायद समय नहीं मिल रहा है, फिर भी अच्छे पॉइंट्स दे देना आप, राइट? और स्पेशली ऐसे स्पोर्ट्स जहां पे आप कुछ तो हिट करते हो, मतलब क्रिकेट में हम बॉल को हिट करते हैं, राइट, बैडमिंटन में हम शटलकॉक को हिट करते हैं, राइट, शादी में हम स्पाउस को हिट करते हैं। राइट, सो समथिंग, यू आर हिटिंग समथिंग, ओके, दैट इज व्हाट मार्स एनर्जी इज ऑल अबाउट। So give yourself points on this particular point also. और चाहिए तो चैट बॉक्स में लिख भी देना आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे, खेलना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल आई एम लाइक अ बिग फैन ऑफ टेबल टेनिस, राइट, और मैं काफी टाइम खेलता भी था, थोड़ा महाराष्ट्र स्टेट लेवल तक वगैरह पहुंच भी गया था, राइट, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया, राइट। सो आई विल गिव लाइक लेसर पॉइंट्स ओनली टू माई सेल्फ। अभी मैं एक चीज आप सब लोगों को पूछूंगा और उससे आपका इमीडिएटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स कंफर्म हो जाएगा। डू यू थिंक चेस जो है इसमें मार्स का इन्वॉल्वमेंट होगा या कौन से प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? अगर आप चेस खेलते हो, चेस में माहिर हो, तो कौन से प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे? नेत्रा जी बोल रही है मर्क्यूरी। व्हाट अबाउट अदर्स? मर्क्यूरी, बुध, एवरीबॉडी सेइंग मर्क्यूरी, नैना जी सेइंग सन, राइट। चेस में ना हम बहुत सारी चीजें बैठ के एनालाइज करके सोच के समझ के, राइट, कोई कोई गेम तो 8-8 घंटे खेलते हैं प्रोफेशनली। यस और नो, राइट। सो चेस डज नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मार्स एनर्जी। देखो आप कितने अच्छे से समझ रहे हो एस्ट्रोलॉजी को, वेरी गुड, गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, है ना? आपके अराउंड हर एक चीज में देयर इज अ प्लैनेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपके अराउंड जितने भी चीज है, जितने भी लोग हैं, उन सब में आपको एक एक दो दो प्लैनेट्स ऐसे दिखाई देंगे। आपको मतलब आप उस लेवल तक जब आप पहुंचोगे ना, लोग आपको पागल बुलाएंगे, लेकिन आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज में आपको प्लैनेट दिखाई देते हैं, राइट। व्हेन यू कम टू दैट लेवल यू विल अंडरस्टैंड, ओके नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी। अंडरस्टूड, राइट? ओके, वेरी गुड। सो थर्ड पॉइंट अबाउट मार्स इज, आई होप आपने ये दोनों चीजों को पॉइंट्स दे दिया आउट ऑफ 10। तीसरे पॉइंट को पॉइंट दे दो, करेज, हिम्मत, कोई भी चीज करने की हिम्मत, कहीं पे भी जाने की हिम्मत, जॉब छोड़ के बिजनेस करने की हिम्मत, राइट, या बिजनेस को भी छोड़ के जॉब में वापस जाने की हिम्मत, राइट, उसको भी, उसके लिए भी तो करेज लगता है, राइट। ये सारी चीजों की हिम्मत, कोई जंग लड़ने की हिम्मत, किसी को कन्फ्रंट करने की हिम्मत, किसी को चाटा मारने की हिम्मत, राइट।
तो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन हाउ हिम्मत वाला यू आर. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुद को कम पॉइंट्स दे दूंगा. ठीक है, स्पेशली वो चाटा मारना, गला पकड़ने वाली बात आज जब भी वे आती है ना. Excellent. 3, 5, 8, 9, 10. Very good. Excellent. Okay. So that is himmat. And the fourth point about Mars is loyalty to some kind of an authority. Loyalty to authority. That is the fourth point of Mars. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिसकी आप हर एक चीज मानते हो. क्यों मालूम है? मार्स क्या है? मार्स इज अ वॉरियर. यस और नो? मार्स वॉरियर है. अभी वॉरियर किसकी सुनेगा? अपने राजा की. और राजा की हर एक बात सुनेगा. राजा बोलेगा आज जाके ये वाला किला जीत के आना है, तो वॉरियर इमीडिएटली रेडी. यस और नो? तो अगर आप सच्चे वाले मार्स हो, सच्चे वाले वॉरियर हो, तो आप सोचो, राइट, आप किसकी बात मानते हो और उसके लिए एकदम यू आर कंप्लीटली लॉयल टू दैट पर्सन. ओके, ये तो पुलिस में या स्पेशल फोर्सेस में ना, ये लॉयल्टी वाली चीज, मार्स वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट. क्योंकि किसी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको अपने को देखना है, इसके पीछे लग जाओ, तो यू कैन नॉट आस्क कि इसके पीछे क्यों, मुझे लगता है उसके पीछे लगना चाहिए, मुझे लगता है इसके पीछे. दैट इज नॉट लॉयल्टी टू अथॉरिटी. इसलिए मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं, यस सर, डन, ऑर्डर इज एन ऑर्डर, यू डोंट क्वेश्चन द ऑर्डर, राइट. ओके, सो मार्स का टोटल क्या है? 29 out of 40, not bad, good only. Okay, very good. 32, 37, 32, 30, 12. चेतना जी को बड़ा पसंद आएगा ये ग्रुप, है ना? राइट. वर्षा जी, हाउ अबाउट यू? हाउ इज योर मार्स? Mars is Good. very good. Okay, it is also good. Huh? Okay, very good. और हमने क्या कहा है? मार्स कोई बुरे प्लैनेट नहीं है. हमने क्या कहा है? हमारे लाइफ में हमें हर एक प्लैनेट के साथ की जरूरत है. Is everybody understanding? We want everybody, every planet to be strong in our chart so that we can decide कि अरे ये सिचुएशन हो गई है, राइट. अभी कान के नीचे बजाने का ही टाइम आया है, राइट. यहाँ पे बातें करने का टाइम खत्म हो गया है अभी, तो उस समय तो कान के नीचे ही बजाना पड़ेगा ना, नहीं तो खुद को खाना पड़ेगा. राइट. ओके, वेरी गुड. Now next planet, two more planets, very important planets, right? Another favorite planet of mine, that is the Jupiter. Teacher, becoming a teacher. How many of you are naturally a good teacher? What do you think? मतलब कोई भी चीज आपको सिखाने में बड़ा मजा आता है, राइट. या फिर आपको मालूम है कोई भी चीज अगर मुझे सीखनी है ना, तो मैं सिखाना जब चालू करूंगी या सिखाना जब चालू करूंगा, मैं सीख लूंगा उस चीज को भी. राइट. दैट इज बीइंग अ वेरी गुड टीचर. IGA. ओके नेत्रा जी, सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स ऑन बीइंग अ गुड टीचर, राइट. और जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल में टीचर बन जाना चाहिए या कॉलेज में टीचर बन जाना, लेकिन ओवरऑल आप मतलब आपके एम्प्लॉय से भी बात कर रहे हो या कलीग से भी बात कर रहे हो ना, उसको क्या बोलते हो? आजा बैठ. राइट. तुझे दो चीजें मैं सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, राइट. ये वाली ट्रेड ना एकदम नेचुरल होगी. ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ जुपिटर इज बिकमिंग अ वेरी गुड एडवाइजर, राइट. और एडवाइजर ऐसे नहीं कि किसी ने एडवाइस मांगना चाहिए, बिन मांगे भी आप एडवाइस देना शुरू. राइट.
नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, सुन, राइट, ऐसा नहीं करना है तुझे, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, राइट, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था तो आप ऐसा करो, तो आप वैसा करो, राइट. So give yourself points on how good an advisor are you. Okay. Third point about Jupiter is doing charities. Okay. और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें मालूम है? गिविंग समथिंग फॉर फ्री, एस्पेशली नॉलेज, राइट. मतलब आपके लाइफ में ऐसा होगा, नॉलेज है, मतलब ठीक है ना, आई डोंट वांट मनी, राइट, बट मुझे सिखाना है, देन योर जुपिटर इज वेरी स्ट्रांग. ओके, excellent. एंड चैरिटी ऑल्सो मीन्स दी अदर थिंग्स ऑल्सो, कि मतलब पैसों की चैरिटी कर लेते हो कभी कभी, या किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाते हो और अपने टाइम दे देते हो, राइट, एनजीओ को, या फिर कभी पैसा दे देते हो, कभी रिसोर्सेस दे देते हो, राइट, दैट इज ऑल्सो चैरिटी ओनली. ओके, सोनल जी क्या बात है, 12 out of 10, excellent. Okay, and the fourth point about Jupiter is righteousness, right. राइटियसनेस मतलब क्या? आपको मालूम है एग्जैक्टली ये चीज गलत हो रही है, ये धर्म के खिलाफ है, राइट. धर्म नीड नॉट मीन रिलीजन ऑल द टाइम, राइट. धर्म मतलब आपने जो भी आपके लाइफ में जो भी डेफिनेशन बना ली है धर्म के बारे में, राइट, यू आर वेरी श्योर ये गलत हो रहा है, ये इसके साथ भी गलत हो रहा है, या फिर ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये चीज सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा, राइट. इसका एक अंदरूनी ना, यू हैव दिस फीलिंग, यू हैव दिस नॉलेज अबाउट दिस, ये ऐसा नहीं होता है जिंदगी में, ये ऐसा होना चाहिए, राइट. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, राइट, यू डोंट केयर अबाउट इट, ये सही है ये गलत है, नो प्रॉब्लम, राइट, दैट इज ओके, राइट. सब कुछ सही है सब कुछ गलत है, नो प्रॉब्लम, चलते रहो आगे चलते रहो, राइट. सो गिव योरसेल्फ लेसर पॉइंट्स ऑन दिस पॉइंट. अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है, आइडिया है, स्पेशली ऐसे लोगों को ना, खुद के साथ अगर कोई अधर्म हो रहा है ना, तो इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है ये गलत है, ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू. ओके, सो गो अहेड, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स. और जुपिटर का टोटल कर लेना, जुपिटर को कितना पॉइंट्स मिल रहा है देखो तो. वाओ, स्ट्रॉन्ग है ना जुपिटर ये बैच में. वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड. और ये पॉइंट्स देखे आई थिंक मेनी ऑफ यू आर डेस्टिन्ड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी. मतलब आप ऐसे नहीं आके बैठे हो मेरे सामने यहाँ पे, देयर इज अ बिग रीजन व्हाई यू आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी. एंड द फाइनल प्लैनेट फॉर टुडे इज शनि, राइट, अनदर माय फेवरेट प्लैनेट. हाँ, बहुत लोगों का फेवरेट नहीं होता है, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट है, और आपका भी हो जाना चाहिए. इफ यू वांट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम शनि आल्सो, नो, मेक इट योर फेवरेट प्लैनेट, राइट. सबसे पहले पॉइंट क्या मालूम है? यू हैव टू बिकम वेरी हार्ड वर्किंग, राइट, एंड स्पेशली फिजिकल भागदौड़, ठीक है. मतलब कभी यहाँ है फिर जाओ, वहां पे काम करो, फिर जाके वहां पे काम करो, वहां पे काम करो, वहां पे काम करो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? अगर सैटर्न इज वेरी स्ट्रांग, ये सारी चीज आप करोगे विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, राइट. अगर आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा कम पॉइंट्स दे देना, ठीक है. हार्डवर्क तो कर रहे हो, लेकिन आप गालियां भी दे रहे हो, आप कंप्लेंट भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा कम पॉइंट्स दे देना, एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. ओके, सो हाउ हार्ड वर्किंग आर यू, हाउ
smilingly hardworking are you, give yourself points on this particular point. Okay, चेक करो। और ये वाला पॉइंट बहुत बताने के बाद अगर रिवाइज करने हैं पॉइंट्स तो रिवाइज कर लो, ठीक है। काफी लोगों ने स्टार्टिंग में 10 दे दिए थे, राइट? ओके, second point about Saturn is zero ego, मतलब हम्बलनेस की मूरत, राइट? किसी ने एक गाल पे झापड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर देना, राइट? किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो बिल्कुल भी उल्टा नहीं बोलना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं? ओके, गुड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, राजेश जी 5, अभिषेक जी 5, मोनिका 0। क्या बात है, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी मोनिका जी, वेरी गुड, राइट? जपिंदर जी ऑल्सो 0, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, वेल डन एवरीवन। Third point about Saturn is being very disciplined. इसका मतलब क्या हुआ? You have a fixed schedule, you have a fixed routine, right? कहीं पे भी पहुंचना होगा, you will reach right on time always, right? और एक परफेक्शन के पीछे भागने का बड़ा आदत होता है आपको। कल वाला असाइनमेंट भी आपने सर्कुलर प्रोट्रैक्टर को यूज करके किया होगा, राइट? क्योंकि यू वांट एवरीथिंग टू बी वेरी परफेक्ट। आपकी रूम है ना, आपकी रूम, राइट, दिस विल बी वेरी मस्त, एकदम क्लीन। ओके, नहीं नहीं, ओके, there will not be any mess if you are very disciplined. Okay, so give yourself points on this particular point of Saturn. Okay, discipline. And the fourth point of Saturn. Okay, Saturn, fourth point of Saturn is being a justice seeker. राइट, आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिखा देता हूं। बिकमिंग अ जस्टिस सीकर, तो ये ना मेरे रिसर्च से निकला हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? सैटर्न इज नॉट अ जस्टिस गिवर, ये जस्टिस देते नहीं है, क्योंकि जो जस्टिस देता है ना वो अथॉरिटी के लेवल पे होता है, राइट? दे आर प्लैनेट्स इन अथॉरिटी। तो जस्टिस देने वाले प्लैनेट्स कौन है? कभी गुरु होते हैं जुपिटर, कभी सन हो सकता है, कभी मर्क्यूरी हो सकता है, राइट? सैटर्न का काम क्या है मालूम है? हमारी मांगे पूरी करो, राइट? इट इज अ जस्टिस सीकर, मतलब आपके लाइफ में भी अगर सैटर्न स्ट्रांग है ना तो ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पे आपको जस्टिस मांगने का नौबत आता है। अंडरस्टूड? और ये जस्टिस आप किससे मांगते हो? किसी से भी, जहां पे भी सैटर्न कनेक्शन बना रहे, वो बाद में हम देख लेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम अपने स्पाउस से भी जस्टिस मांग लेते हैं, राइट? देखो जी ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, राइट? मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ये हुआ वो हुआ, राइट? डिसीजन आप लेते हो क्या वहां पे? डिसीजन आप नहीं लेते हो, बिकॉज यू हैव जीरो ईगो। आप डिसीजन दूसरे के ऊपर छोड़ देते हो अगर सैटर्न स्ट्रांग होगा तो, राइट? बिकॉज यू आर नेवर द डिसीजन टेकर, you cannot take decision, no, because you have an zero ego, you are very disciplined, सेवक हो आप, है कि नहीं? लेकिन मांगे जरूर रखते हो, राइट? हमारी मांगे पूरी करो, इसलिए तो वर्कर लोगों की यूनियन बन जाती है, एम्प्लॉइज की यूनियन बन जाती है, और यूनियन का क्या काम है? जस्टिस मांगना। शादी में भी अगर डिवोर्स की बात आ रही है तो क्या होता है? यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस ओनली इन द मैरिज, राइट? ओके,
So give yourself points on this particular point also. Are you just a seeker? और टोटल सैटर्न का टोटल कर देना, कितना पॉइंट्स आ गया? 32, 20, okay. 32, 18, 10, okay. 29. All right, excellent, well done, very good, amazing. सबसे पहले तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए give yourself a big round of applause. Very well done. कैसे लगा ये पूरा एक्सरसाइज? Let me know in the chat box. क्या आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है? क्या आपको मैं पसंद आ रहा हूँ? क्या आपको ये प्लैनेट्स पसंद आ रहे हैं? यस, वेरी गुड, थैंक यू. राधे राधे, राधे राधे. अभी ना तुरंत देखो, एक काम करो, अपने लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है लिखो चैट बॉक्स में. आज की तारीख में आपके लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है? राइट दैट इन द चैट बॉक्स. मार्स, जुपिटर, जुपिटर एंड मार्स. ओके, सब लोग कितने, मैंने जितने भी नाम लिए 4-5, जुपिटर मार्स, जुपिटर मार्स, जुपिटर मार्स, मर्क्यूरी. ओके, excellent, very nice. Monica ji saying Venus, very nice, very good. Venus and Saturn. Okay, excellent. So these planets, no, जो planet strong है आपके लाइफ में, अगर आप नोट्स ले रहे हो तो लिख लेना. right, you have to focus on these planets for immediate success. right, ये planets जो है, ये traits जो है, आपके लाइफ में आपको बहुत सारी सक्सेस ऑलरेडी दे सकते हैं. ठीक है, अच्छा अभी लिख दो चैट बॉक्स में कौन से प्लैनेट्स हैं जो लोएस्ट है. वेरी लेस पॉइंट्स. विच आर दोस प्लैनेट्स? वीनस एंड सन लोएस्ट है, मार्स लोएस्ट है, सन एंड सैटर्न लोएस्ट है. क्या कॉम्बिनेशन है, सन और सैटर्न दोनों लोएस्ट है. राइट, मतलब अब कहीं तो बीच में अटके हुए हैं. राइट, ओके, सन एंड मून लोएस्ट है. ओके ज्योति जी, सन सन सन, वाओ, मेरा भी सन ही लोएस्ट आता है. अभी नहीं, पहले. अभी तो खेल लेते हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स इधर उधर भी है क्या. सैटर्न, सन. राजेंद्र जी, केतु कैसे लिख दिया हमने? हमने तो केतु डिस्कस भी नहीं किया. क्या बात है, अमेजिंग. ओके, अभी ये जो लोएस्ट प्लैनेट्स है ना, जो लोएस्ट पॉइंट जिनको मिले हैं, राइट, चेक करो आपकी लाइफ में इन्हीं प्लैनेट्स के वजह से देयर आर चैलेंजेस. यस और नो? राइट, इमीडिएटली यू विल बी एबल टू रिलेट इन योर लाइफ. राइट, कभी ईगो रखते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है, कभी नो ईगो रखते हो उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है. राइट, कभी क्विक एक्शंस नहीं लेते हो उसके वजह से प्रॉब्लम आता है, कभी कभी बहुत क्विक एक्शंस ले लेते हो उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है. राइट, सो हमें क्या करना है, इन प्लैनेट्स को फोकस करके वी हैव टू रियली मेक देम स्ट्रांग. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? दैट इज योर रेमेडी. राइट, अगर पॉलिटिक्स नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, छोटे छोटे लेवल्स पे खेलना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना पड़ेगा. अंडरस्टूड और नो? यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड. Okay, any questions you have, please put it in the chat box regarding this, or if you want to write down any realization you are having, please put it in the chat box.
एंड कैन वी क्विकली हियर फ्रॉम चेतना जी? चेतना जी, आपके लाइफ में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है? सर सबसे स्ट्रॉन्ग सन है, सन है, वेरी गुड। और और वीनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर वो मूड ऑफ प्लैनेट मैंने जब निकाला। हाँ, तो लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल लेवल पे भी अगर देखेंगे तो सर प्रैक्टिकल लेवल पे भी जुपिटर काफी स्ट्रॉन्ग है मेरा। ओके, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो सब मार्क्स लोग एक चीज ऐसी लिख देना चैट बॉक्स में जो आप इमीडिएटली करना चालू करोगे। जैसे अभिषेक जी ने लिख दिया कि आई नीड टू डेवलप माई लीडरशिप क्वालिटी एंड ही इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट। राजेंद्र जी, सिर्फ जेमस्टोन से क्या होगा जब तक आप खुद के माइंड को नहीं चेंज करते हो, खुद के बिहेवियर्स को चेंज नहीं करते हो, राइट? क्या सोना पहनने के बाद तुरंत पॉलिटिक्स आ जाएगा? आपके बॉडी के ऊपर इतना सारा सोना देख के लोग पॉलिटिक्स खेलना चालू करेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। यस और नो? राइट? ओके, ओवरऑल सन स्ट्रॉन्ग करना है, यू नीड टू लर्न पॉलिटिक्स, लॉन्ग टर्म विजन। एक्सेलेंट, वेरी गुड। एक एक चीज लिख दो जो आज के बाद आप इमीडिएटली अप्लाई करना चालू करोगे। वेरी गुड। अभी आप में से कितने लोगों को यू वांट अ प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, यू वांट अ नाइस रेमेडी? डू यू वांट इट? यस और नो? टाइप इन यस इन द चैट बॉक्स, लेट अस सी। प्रोफेशनल लाइफ मतलब क्या? जहां पे आप काम करते हो वहां पे डू यू वांट मोर इज्जत? डू यू वांट मोर फेम? डू यू वांट मोर मनी, राइट, इन योर प्रोफेशनल लाइफ? डू यू वांट अ बिगर नेटवर्क इन लाइफ? यस, वेरी गुड श्री चरण जी, वेरी गुड, excellent. So let us try to understand what professional remedy according to our salsa method of astrology you can start working on immediately. ठीक है? Okay. ये रही professional remedy. Okay. Now there is some process that we have to follow. So let us follow this. Pay attention. Right? ध्यान देना अच्छे से. And we will do this. सबसे पहले, ओ ये पर्सनल लाइफ आ गई। ओके, वेयर इज प्रोफेशनल लाइफ? अच्छा, यहाँ पे चले। ओके, सबसे पहले इन योर लग्न चार्ट, आपके लग्न चार्ट में चेक करो कौन सी राशि सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली नंबर लिख देना। कौन से नंबर की राशि, राशि जो कॉर्नर में नंबर लिखा है ना, वो नंबर, ठीक है, इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। चेक इट आउट। साक्षी जी, आपका कौन सा है? सैटर्न 11th है ना आपका? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू चेक। अभिषेक जी, लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस देखो, फर्स्ट हाउस में वो कॉर्नर में कौन सा नंबर लिखा है, राशि का नंबर कौन सा है? ठीक है, जस्ट चेक दैट। द सेकेंड स्टेप इज चेक विच प्लैनेट इज द स्वामी ऑफ दिस राशि। सब लोग चेक करो, और यहाँ पे मैंने दिया है, देखो कौन से राशि का कौन स्वामी है, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने, फॉर योर रेडी रेफरेंस। वो डे 1 की वो राजा रानी वाली कहानी। ओके, वेरी गुड, तो लिख लो। एक्सेलेंट। अभी ये जो प्लैनेट है ना, जो आपने अभी लिखा है, राइट, इस प्लैनेट को बोलते हैं असेंडेंट लॉर्ड। ये कौन है आपका? ये है आपका असेंडेंट लॉर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप,
जो हमने अभी एक्सरसाइज किया ना, उसमें से देख लो, ये आपका असेंडेंट लॉर्ड ऑलरेडी स्ट्रांग है कि ऑलरेडी वीक है? पुट स्ट्रांग और वीक इन द चैट बॉक्स प्लीज। ये जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है, इज इट स्ट्रांग और इज इट वीक? जो पॉइंट्स मिले थे 30 के नीचे है कि 30 के ऊपर है, देख लेना। साक्षी जी, आपका स्ट्रांग है कि वीक है? तो मेरा स्ट्रॉन्ग है सैटर्न। एक्चुअली मेरा ना वैसे भी बाय नेचर ऐसे ही रहा है, और मैंने देखा भी है कि प्रोफेशनल लाइफ में मैं ऐसी ही हूँ कि लाइक अब जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो आई हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग उसमें, और मुझे अपना जो पैटर्न भी है मुझे वैसे ही रखना है। आई हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड आई हैव टू टीच विद जीरो ईगो, करेक्ट। और मुझे परफेक्शन के साथ काम करना है और सर्विंग होना है, पेशेंस रखनी है। तो जब करेक्ट। मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे इनफैक्ट जब मैं क्लास भी लेती हूँ, जब मेरा बिहेवियर ऐसा रहता है तो मुझे लगता है कि उस दिन मेरा सारा बहुत अच्छा गया है, पूरा जो सेशन। और मतलब वो बिहेवियर अपनाने से मुझे लगता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही है। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अभी आप सब लोग, दिस इज द रेमेडी, ओके, जो साक्षी जी ने बताया, जो मैं बताने जाने वाला हूँ। क्या रेमेडी है? आपके प्रोफेशन में इस प्लैनेट के सारे बिहेवियर्स को यूज करना है। ओके, आपके प्रोफेशन में इस प्लैनेट के सारे बिहेवियर्स को आपको यूज करना है। राधे राधे, नेत्रा जी ने तुरंत बोल दिया राधे राधे। ओके, और फुल यूज करना है, आधा अधूरा यूज नहीं करना है। प्रोफेशन कोई भी होने दो आपका, राइट, प्रोफेशन आपका कोई भी होने दो, लेकिन इस चीज को आपको यूज करना है। इस प्लैनेट के ये जो बिहेवियर्स है उसको आपको यूज करना है। ये जो भी आपका असेंडेंट लॉर्ड है, मतलब आपका असेंडेंट लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए। देन ओनली यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस रेमेडी? टाइप इन IGA इन द चैट बॉक्स। और इसको स्ट्रांग कैसे करोगे? चैंटिंग करके, जेमस्टोन पहन के? कैसे करोगे इसको स्ट्रांग? इसको स्ट्रांग आपको करना है वैसे बिहेवियर रख के। ऑलराइट, ये जो भी आपका असेंडेंट लॉर्ड है, राइट, ये असेंडेंट लॉर्ड की क्वालिटीज को आपके प्रोफेशन में आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके असेंडेंट लॉर्ड सन है, राइट, और आप जॉब करते हो, मतलब आप कुछ बोलते नहीं हो किसी को, एकदम शांत शांत रहते हो, राइट, ये सारी चीजें करते हो, ये तो सन का बिहेवियर नहीं हुआ। सन का बिहेवियर कैसा है? थोड़ा सा पॉलिटिक्स आएगा, थोड़ा सा ईगो आएगा। तो इन सारी चीजों को आपको ऐड करना है इन योर प्रोफेशन, आपके बिहेवियरल पैटर्न में, तभी जाके आपका प्रोफेशन एकदम से देखो मस्त हो जाएगा। ओके, एक्सेलेंट श्री चरण जी। 10-11 Saturn means 10th राशि 11th राशि लॉर्ड इज सैटर्न, नो? राइट, ये जो लिस्ट है, दिस इज लिस्ट ऑफ लॉर्ड्स ऑफ दैट राशि। 1 and 8 Mars is the Lord, 2 and 7 Venus is the Lord, so on and so on. Okay, have you understood this everyone? Type in Radhe Radhe in the chat box. And कोई realization हो रहा है क्या? Let me know. If you have any question, put it in the chat box. Right? आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखो और आप अपने असेंडेंट लॉर्ड को कितना यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चेक इट आउट। हमने तो 4 ट्रेड्स पढ़े हैं, जैसे हम आगे जाएंगे वी विल लर्न 20 ट्रेड्स ऑफ एवरी प्लैनेट, राइट। तो हर एक प्लैनेट में हमें PhD करनी है, हर एक प्लैनेट में हमको एकदम रिसर्च में एकदम डीप में चले जाना है, राइट, स्पेशली योर असेंडेंट लॉर्ड फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। ओके, ज्योति जी, फर्स्ट हाउस में जो राशि नंबर है उसके लॉर्ड तो देखो। ओके,
Sri Charanji, you can put your question. Okay. Has everybody understood this? Right? Now, how many of you want to have a more beautiful personal life? How many of you want a more beautiful family life? Yes or no? अगर चाहिए तो वीडियो ऑन कर दो सबसे पहले. That is the biggest remedy. Right? Okay. फैमिली लाइफ को अच्छी करनी है, फैमिली लाइफ को एकदम पीसफुल करनी है, राइट, एकदम स्मूथ सेलिंग करनी है, राइट, देन यू हैव टू यूज दिस रेमेडी फॉर योर फैमिली लाइफ. लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फैमिली है कौन. राइट? अभी ना एकदम थोड़ा सा ना तीखा सवाल पूछने वाला हूं आप सब लोगों को. एवरीबडी रेडी? राइट? सी, वी हैव टू वर्क ऑन आवर अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियर चेंज ना. तो थोड़ा सा तीखा वाला सवाल. सही में जिंदगी में किन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है? दैट इज योर फैमिली, नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? दैट इज ओनली योर फैमिली. किन किन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, दैट इज योर फैमिली. अभी आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस, राइट. कभी पर्सनल कंसल्टेशंस होते हैं, राइट, हस्बैंड के बारे में बात होते हैं, वाइफ के बारे में बात होती है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट. कभी ससुर के बारे में, कभी माता पिता के बारे में, राइट. ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे हस्बैंड के साथ रह तो रहे बट देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन. ऐसे भी केसेस होते हैं. आपको खुद ही को पूछना है, राइट, आपको खुद ही को पूछना है, राइट. यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि लाइफ में सही में किस किस के साथ यू हैव अ वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन. दैट इज ओनली योर फैमिली, राइट. अगर पेरेंट्स के साथ यू डू नॉट हैव एन इमोशनल कनेक्शन, देन दैट इज योर प्रोफेशनल लाइफ ओनली, दैट इज अ सोशल लाइफ, right? So there are a few things that you have to accept. Are you understanding? Right? What is the acceptance you need to have? कि हाँ यार, मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ, इन लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन there is no emotional connection as such. इमोशनल कनेक्शन क्या होता है? वो रोने लग गए आपको भी फील होता है, वो गुस्सा हो गए आपको भी फील होता है, वो खुश हो गए आप भी खुश हो गए, राइट. वो ठीक नहीं है, राइट, तो आपको भी बुरा लगता है, यार ठीक क्यों नहीं है, ठीक हो जाए यार, यू नो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट इज एन इमोशनल कनेक्शन, राइट. आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस हैं. कौन से वाले? यार तू तो बीमारी रहता है. हाँ, जिंदगी कैसे चलेगी फिर, राइट. मुझे अकेले कोई काम करना पड़ रहा है, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Then there is no emotional connection. That is your social life. Okay. How many of you understood this point? Or how many of you went into deep thought? कि हाँ यार, सच्ची में मेरा इमोशनल कनेक्शन कौन है लाइफ में, सोचना पड़ेगा. Right? So in my life, no, even today, I say this out very publicly also. There are only 4 to 5 people. Only 4 to 5 people, right? जहाँ पे there is a deep emotional connection, right? And I will also be very honest. और ये chat में भी मेरे दिख जाएगा, right? Parents are not included in this. My sibling is not included in this. Is everybody understanding this? राइट. तो आपको सोचना है सही में. और ये जो मैं अगली रेमेडी बोलने वाला हूं, वो उन्हीं लोगों के साथ आपको यूज करनी है, राइट. कहीं ये वाली रेमेडी आप गलत लोगों के साथ यूज मत कर देना. जिनके साथ इमोशनल कनेक्शन है उन्हीं के साथ ये रेमेडी आपको करनी है, क्योंकि वही लोग आपको समझ पाएंगे.
राइट, दैट इज अनदर इंडिकेशन कि आपकी पर्सनल लाइफ कौन है, ऐसे लोग जो आपको समझ पाते हैं. ओके, चलो लेट अस गो टू योर पर्सनल लाइफ रेमेडी. दिस इज द पर्सनल लाइफ रेमेडी. ओके, स्टेप नंबर 1, check which राशि is your moon sitting in. आपके जो मून है वो कौन सी राशि में बैठे हैं. देख लो, देख लिया, पुट इट इन द चैट बॉक्स. राइट, हाउस नहीं देखना है, राशि देखना है. ठीक है, विच राशि इज योर मून सिटिंग इन. जैसे मेरे जो मून है ना वो 11th राशि में बैठे हैं. ओके, करेक्ट. इसके बाद चेक विच प्लैनेट इज द स्वामी ऑफ दिस राशि. वापस मैं ये लिस्ट दे देता हूं आपको सो दैट यू हैव अ रेडी रेफरेंस. विच राशि इज द स्वामी ऑफ दिस राशि. चेक इट आउट. नेत्रा जी बोल रही है मार्स. करेक्ट. श्री चरण जी, योर लग्न वाज इन स्कॉर्पियो, योर मून इज इन एरीज. ओके, excellent. Rajendra is saying moon. We got 2 responses. Ayan ji is saying Venus. We got 3 responses. I'm going to count the responses. Okay. Sonal ji is saying Saturn. Very good. 4 responses. Jyoti, Saturn. Rajesh ji, Sun. 5. Naina ji, 6. So 7. Right. Abhishek ji, कोई confusion नहीं है. See, your ascendant lord is a different planet. Can be a different planet, and your moon lord can be a different planet. ठीक है, जनरली हम जब राशि की बात करते हैं हम मून लॉर्ड की बात करते हैं, बट यहाँ पे वी आर लर्निंग इन अ डीपर वे. वी आर अंडरस्टैंडिंग द असेंडेंट लॉर्ड सेपरेटली एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द मून लॉर्ड सेपरेटली. ओके, राइट. श्री चरण जी सेइंग बोथ आर मार्स. वेरी गुड श्री चरण जी. Naina ji is saying Mars. Monica ji is saying Saturn. So we got 11 responses now. What about others? Japinder ji बता दीजिए. रेखू जी, बंशा जी, उत्तम जी, सुशील जी, मोनिका जी. Please put it in the chat box. Who is your? कहीं पे भी देख लो सेम ही आएगा ना. मून चार्ट में भी देखोगे तो भी मून उसी राशि में दिखेगा. लग्न चार्ट भी देख लोगे तो भी मून उसी राशि में दिखेगा. ये स्वर नो है ना, तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं. ओके, डन एवरीबॉडी. ओके, एक्सीलेंट. वाह, सुपर रिस्पॉन्सेस. एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग. वेरी वेल डन. ये प्लैनेट को क्या बोलते हैं? ये प्लैनेट को बोलते हैं आपके मून लॉर्ड. ठीक है, दिस प्लैनेट इज कॉल्ड एज योर मून लॉर्ड. मून के साथ जो नंबर है उस नंबर का स्वामी, दैट इज योर मून लॉर्ड. ओके, तो मून लॉर्ड कौन है आपका? आपने सबने लिख दिया. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप इज चेक कर लो ये मून लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वीक आ रहा है आज की तारीख में. ये जो मून लॉर्ड है ये स्ट्रॉन्ग आया कि वीक आया? जब हमने सुबह मतलब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज किया. Right? This is the second time I'm saying subah. Last time I also did the same thing. Okay. Okay. Netra ji saying strong. Monica ji saying weak. Rajendra ji saying weak. Weak. Strong. Sonal ji, very good. Sushil ji is also saying strong. Okay. So what is the remedy here? अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है तो आपके मून लॉर्ड की तरह आपको बिहेव करना होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट. फॉर एग्जाम्पल, जिन जिन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है और आपका मून लॉर्ड सन आ रहा है तो उन लोगों को आपको लीड करना पड़ेगा.
उन लोगों का लीडर बनना पड़ेगा आपको पर्सनल लाइफ में। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? अगर वीनस है तो क्या करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ में? उन लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा, राइट? उन लोगों का हमेशा दिल बहलाए रखना पड़ेगा आपको, राइट? अगर सैटर्न है तो जिन जिन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा करो, राइट? और सेवा कौन सी भी, विदाउट एनी ईगो। बर्तन मांजो, खाना बनाओ, राइट? कुछ भी कर लो उन लोगों के लिए, अगर सैटर्न है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी इजियर, योर पर्सनल लाइफ विल बी इजियर। और हंसते खेलते करो, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, ओके? ज्योति जी, उनको खुश नहीं होने तो चलेगा ना, आप खुशी खुशी से करते रहो बस। वो खुश हो रहे कि नहीं हो रहे वो आपका टेंशन नहीं है, आपको करते रहना है। अंडरस्टूड? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ओके, ओके। ये दोनों रेमेडीज पसंद आई आपको? अगर सैटर्न है ना पर्सनल लाइफ में, और अगर ये सवाल आ रहा है सर कितना करे, तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो आ रहा है, राइट? या फिर इन लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन आपका टूट चुका है, आप गलत लोगों की सेवा कर रहे हो। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? कैसे दिखेंगे ना रिजल्ट गलत लोगों की सेवा करेंगे तो? मैंने इसलिए पहले आपको पर्सनल लाइफ का डेफिनेशन बताया, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ओके। कितने लोगों को बहुत मजा आया ये सीखने को, एस्ट्रोलॉजी, सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी अभी तक? हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड इट? यस और नो? पुट इट इन द चैट बॉक्स। आईजीए, राधे राधे, वेरी गुड। कितने लोगों को मैं पसंद आया? लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को मेरे अंदर की वीनस पसंद आई, वो भी लिख देना। कितने लोगों को मेरे अंदर का वीनस दिखाई दिया, वो भी बता देना। पुट दैट इन द चैट। बहुत दिखाई दिया। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, राइट? डोंट वरी, नोट्स वगैरह सब वी विल पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? सिंपली सुपर, थैंक यू श्री चरण जी। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कितने लोग कनेक्ट कर पाए खुद को अपने लाइफ के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कर पाए? यस और नो? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये होना बहुत जरूरी है। सो इज इट ओके मैं आपको आगे की जर्नी के बारे में बताऊं? कितने लोगों का मन कर रहा है दिल से, एकदम अंदर से सीखना है सर, आपसे सीखना है, सीखते रहना है, अपनी खुद की लाइफ को चेंज करना है, राइट? छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करेंगे और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स। और ये जो आगे का सेक्शन है ना, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, ठीक है? तो जिनको जाना है गरबा खेलने के लिए आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट? जिनको रहना है, सही में समझना है, सही में सीखना है, राइट? आप लोग रुके, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट